Hello, can you hear me? Mithilesh, can you hear me? Hello, Yes, ma'am. Saurabh. Have you done the program for method overriding in the previous lab class? Method overriding, have you done this? What are the programs that you have done in anyone answer me? And where are the others? Only 7 students are present in this class right now. There are all total 63. Tell other to join this class. Where are the seer? Mithilesh, come on. Come Yes, on, madam. where are the others? You are the seer. So only 8 number of students are joined in this class right now. Tell other to join this class because you were in a limited time that only 50 minutes we are in our hand for the lab session. And if you take so much time to join, I think for the last 2 or 3 lab classes, that 10 minutes are over to join all of you. Tell other to join this class right now. ম্যাম Yeah, tell me. ম্যাম ওই অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসের যে প্রবলেমটা তখন বললেন না, তো ওইটা এরিয়াটা কি রেক্ট্যাঙ্গেল আর স্কোয়ারের এরিয়া একটা প্রোগ্রামেই বের করতে হবে? হ্যাঁ, একটা প্রোগ্রামই যদি না করো তাহলে কি করে বোঝাবে যে তুমি অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসে কনসেপ্টটা ইউজ করেছো? একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস ডিফাইন করো যেখানে হ্যাঁ। একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড থাকবে এরিয়া, ঠিক আছে? সেই অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড এরিয়াটা দুজন অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসটা বেসিক্যালি একটা রেক্টাঙ্গেল আর একটা স্কোয়ার ক্লাস, এরা দুজন ওটাকে ইনহেরিট করবে। ইনহেরিট করে নিজের মতো করে হচ্ছে এরিয়াগুলো ক্যালকুলেট করবে। তারপর যেমন তোমরা মেন ক্লাসে অবজেক্ট ক্রিয়েট করে কল করো মেথডকে, সেরকম ভাবে কল করবো। ক্লিয়ার দ্য প্রবলেম? ইয়েস ম্যাম, বুঝতে ক্লিয়ার। হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। আরেকবার আমি রিপিট করে দিচ্ছি, প্রবলেমটা এটা, তোমাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসের হেল্প নিয়ে এরিয়া আর রেক্টাঙ্গেলের, সরি, স্কোয়ার আর রেক্টাঙ্গেলের এরিয়া ক্যালকুলেট করতে হবে, ঠিক আছে? তো এর জন্য তোমাকে কি করতে হবে, একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস ডিফাইন করো। উইদিন দ্যাট ক্লাস ইউ হ্যাভ টু ডিফাইন ওয়ান অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড এরিয়া, okay? And that abstract class must be inherited by some other two classes, that are rectangle and square. And in rectangle class you have to define the area method in your own way so that you can calculate the area of the rectangle. And in the square class you have to also inherit the abstract class, and you have to write down the area method in your own way so that it can calculate the area of the square. And after that, in the main class, create object of that two class, rectangle and square, and you can just call the method area method, so that it will show you the area of the rectangle and area of the square. Okay. If you got the idea of abstract class and abstract method, I think it will be easier to you to solve this problem. Try to solve this problem, and after some time, Suanka sir also join with you. Okay, first of all, try to solve this problem. Before that, Shumon, call other to join this class. Ma'am, I have called. Okay, tell them to join this class. And so after 10 minutes or 15 minutes, if they join this class, so only 30 minutes is effective time. Okay, try to solve this problem. And if you are facing any problem, you can write down in the chat box, or you can also call me. You can also tell me in this class. I am here also.
हाँ हाँ हेलो मैम हेलो सपना मैम হ্যালো স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ বলছি কিছু দিয়েছেন নাকি ম্যাম? হ্যাঁ, আজকে ওদের ক্লাসে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসটা করিয়েছিলাম। তো অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাসেই একটা প্রবলেম ওদেরকে করতে বলেছিলাম, যে ওই অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড দিয়ে এরিয়া, রেক্টাঙ্গেল আর স্কোয়ারের এরিয়া ক্যালকুলেট করা, অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস আর অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড দিয়ে। তো সেটাই এখন ওদেরকে করতে বলেছি, যদি ওরা করে উঠতে পারে। হুম হুম। ঠিক আছে, হয়ে গেছে অলরেডি, 12-13 মিনিট হয়ে গেছে দিয়েছি। আমাকে একটু প্রেজেন্টার করে দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রেজেন্টার করে দিচ্ছি। করেছিস কেউ? করলি? ম্যাম যেটা দিয়েছে সেটা করলি কেউ? অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস আর আজকে এত কমজন জয়েন করেছে। কতজন? এই তো কতজন, 10 জন এই তো এখন। হ্যাঁ 16 জন। হ্যাঁ, 16-17 জন মতো জয়েন। অনয় করেছিস? অনয় হ্যাঁ স্যার করছি। ম্যাম যেটা বলেছে সেটা করছিস? ओके प्रतीक प्रधान कर रहे हो तुम? यस सर यस प्रतीक अच्छा ये जल्दी से करो। उसके बाद बेसिकली हम वो मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग इन दोनों का कॉन्सेप्ट दिखाएंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग 2:20 हो रहा है, 2:30 के अंदर 2:30 के अंदर कंप्लीट करो।
পরে কেউ দিয়েছিস প্রধান क्या दिया तुम कहाँ गया चैट 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 abstract void area okay okay ठीक है वेरी गुड और कोई সৌমিতা করলি করছি স্যার। তাড়াতাড়ি কর
আর হবে রে বাকিদের কারো এভাবে কাটিয়ে দিবি? আচ্ছা মিথিলেশ কুমার, মিথিলেশ, মিথিলেশ, হ্যালো মিথিলেশ, মিথিলেশ, ওকে ফাইন। অনয় কিছু হবে? এটা এতটুকুন প্রোগ্রাম তো হচ্ছে না, এটা তো অসম্ভব ব্যাপার, এটা তো না হওয়ার কিছু নেই। অনয়, গৌতম রাজ, দীপাঞ্জন খান, আছিস? হ্যাঁ স্যার আসছি। কেউ তো একজন আওয়াজ দিল। এমডি সোহেল, সোহেল, ठीक है चल। যেটা হচ্ছে যে बेसिकली आज हम क्लास में ये दिखाने वाले थे कि फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओके, तो जो लोग एक्टिव हो सब देखो, और जो लोग सो रहे हो वो सोते रहो। सो बेसिकली ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग में क्या है? ओवरलोडिंग मींस मेथड नेम मस्ट बी सेम। एक क्लास के अंदर इफ वी डिक्लेयर ए सेम नेम मेथड but argument are different, then this procedure is known as overloading। ठीक है, सो जो ये जो एरिया बोल के जो मेथड जो मैम ने अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास देके जो करने बोले थे, वो अगर हम मेथड ओवरलोडिंग देके करते तो कैसा होगा देखो। सो फर्स्ट क्लास ओवरलोडिंग 2010 क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। ओके, सो फर्स्ट void एरिया, मेथड नेम इज सेम बट आर्गुमेंट डिफरेंट। सपोज रेक्टेंगल का क्या होगा? एक आर्गुमेंट जाएगा, उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया इज a into a, करेक्ट करेंगे a into b, area is a into b। सो देखो मेथड नेम सेम है, यहाँ पे भी एरिया, यहाँ पे भी एरिया, बट डिफरेंट क्या है? a और यहाँ पे ए बी। देन पब्लिक स्टैटिक void main string ar। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंट्रोल, अच्छा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम दे, अच्छा ओ बी इक्वल्स टू न्यू, देन क्या करेंगे? ओ बी डॉट एरिया, फर्स्ट वैल्यू भेजेंगे 5, सो वन आर्गुमेंट फंक्शन कॉल होगा, सेकंड इज ओ बी डॉट
area 3,8 main close class close। सेव करते हैं इसको। डॉट जावा देखे cmd ड्राइव जावा प्रोग्राम है। हेलो है हेलो জাভা সি স্পেস দেখে ফাইল নেম হচ্ছে কি ছিল ওভারলোডিং না ডট জাভা compilation successful see the area is 25 a into a 25 or 3 into a 24 ठीक है दिस इज ओवरलोडिंग एक्चुअली जब ये कंपाइल होता है ना उसी कंपाइल टाइम में फिक्स्ड हो जाता है कि दिस एरिया अंडर 5 ये कोड इसके साथ सेट होगा मतलब इसको कॉल करेगा एंड ये एरिया 38 यहाँ पे कॉल करेगा ठीक है दिस इज ओवरलोडिंग किसी का डाउट है कुछ इसमें किसी का कुछ डाउट्स है इसमें और कोनो डाउट्स नो सर গুড আচ্ছা আর একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে ओवरराइड मींस ओवरराइडिंग में बेसिकली दो क्लास का कॉन्सेप्ट होता है मतलब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है ओवरराइडिंग में चाइल्ड एंड पेरेंट एंड चाइल्ड तो बेसिकली क्या है यहाँ पे फर्स्ट और मेथड सिग्नेचर मस्ट बी सेम ओवरराइडिंग में क्या होता है मेथड सिग्नेचर मस्ट बी सेम दैट मींस पेरेंट क्लास में भी जो फंक्शन होगा सेम सिग्नेचर तो चाइल्ड क्लास में भी सेम सिग्नेचर होगा तो देखो यहाँ पे क्या होता है सपोज पेरेंट क्लास इज ए ओके तो वहां पे भी हम लोग एरिया निकाले अच्छा इंट एरिया ए इज ए ये क्लास क्लोज हो गया वहां पे सेकंड क्लास ओवर राइडिंग सेम सिग्नेचर यहाँ पे हम रखे ए इसका भी होगा ए इंटू ए देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑब्जेक्ट किसका होगा ऑब्जेक्ट होगा ओवरराइडिंग अच्छा
ऑब्जेक्ट किसका होगा, ओवरराइडिंग का। देन ये लाइन ऑफ हो जाएगा, जरूरत नहीं है। ओबी डॉट एरिया 5, तो ये 5 किसको कॉल करेगा, इसको या इसको। हम यहाँ पे लिख देते हैं सुपर एरिया, और यहाँ पे लिखते हैं सब एरिया। तो बेसिकली क्या होगा, जब ओबी डॉट एरिया कॉल होगा किसका ऑब्जेक्ट देके, सब। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंड्स ए। तो ये जब एक्सटेंड होगा दैट मीन्स दिस एरिया में फंक्शन इनहेरिटेड होके इस क्लास के अंदर आ जाएगा, ओवरराइडिंग 2810 इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका इस क्लास के अंदर दो फंक्शन है सेम टाइप का, तो क्या होगा, ये सुपर क्लास का जो फंक्शन है ये ओवरराइड हो जाएगा सब क्लास के थ्रू, मतलब सब क्लास का फंक्शन तब विजिबल होगा। ओबी डॉट एरिया करने से क्या होगा, आउटपुट आएगा सब एरिया का। ठीक है, देखते हैं सेव एज। ओवरराइडिंग जावा सी ओवरराइडिंग डॉट जावा। अच्छा, ओ कैपिटल दे दी, यहाँ पे ओ कैप स्मॉल है, ओ कैपिटल। देखो सब एरिया इज 25, दैट मीन्स आउटपुट किसका दिखा रहा है, सब का। तो सुपर का नहीं दिखा रहा है, क्योंकि सुपर का जो मेथड है वो ओवरराइड हो चुका है सब के थ्रू। दिस इज फंक्शन ओवर राइडिंग। अब इसको हम लोग कैसे, मतलब हम लोग अगर सुपर प्लस का अगर देखना चाहते हैं, सुपर प्लस का अगर हम देखना चाहते हैं तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे। सुपर प्लस का दो प्रोसीड्यूर है, বাইরে চলে গেছে, খাওনি ফোন করো। हाँ, नेक्स्ट इसको अगर हम सब क्लास का, सॉरी सुपर क्लास का अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, यहाँ से सिर्फ हम लोग लिख देंगे सुपर। कल जो हम दिखाए थे सुपर कीवर्ड इनहेरिटेंस में दिखाए थे, तो यहाँ पे सुपर कीवर्ड डॉट एरिया फंक्शन। सपोज यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऐसे वैल्यू भेजे, तो क्या होगा, ओबी डॉट एरिया से कॉल होगा ये फंक्शन, इसके थ्रू चला जाएगा सुपर, मतलब इसमें आ जाएगा। इसको देखा आउटपुट, देख रहे हो, सुपर एरिया इज 49, सब एरिया इज 25, दैट मीन्स सब टू सुपर हम लोग सुपर फंक्शन स्टेटमेंट देके कॉल करेंगे। ठीक है, और एक प्रोसीजर है डायनामिक मेथड डिस्पैच। डायनामिक मेथड डिस्पैच में क्या होता है, सुपर क्लास का रेफरेंस के अंदर सब क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर करेंगे। सुपर क्लास का रेफरेंस मतलब सुपर क्लास का रेफरेंस कौन है, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, ए ओ बी इक्वल्स टू न्यू ओवरराइडिंग है, दैट मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट किसका होगा, सब क्लास का, किसके अंदर स्टोर होगा, सुपर क्लास का रेफरेंस के अंदर। ठीक है, इस लाइन को ऑफ कर देते हैं। तब ओबी डॉट एरिया करेंगे तो सब क्लास कॉल होगा। अच्छा, सेम चीज अगर हम ऐसे करते हैं, ए ओ बी 1 इक्वल्स टू न्यू ए ओ बी 1 डॉट एरिया सपोज 4, इसमें क्या होगा, सुपर क्लास का रेफरेंस, ये सुपर क्लास का रेफरेंस एंड उसके अंदर अपना क्लास का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली ये किसको कॉल करेगा, सुपर क्लास को। सुपर क्लास का रेफरेंस उसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, सब क्लास का। ठीक है, तब सुपर क्लास का रेफरेंस काम करेगा सब क्लास की तरह, दैट मीन्स तब कॉल होगा ये सब। सो दिस इज
डायनामिक मेथड डिस्पैच। देखो सुपर 16 4 आएगा और सब 25, ठीक है। सर ये सेकंड वाला फिर से समझा दीजिए ना कौन सा? सर, ये डायनामिक मेथड डिस्पैच वाला। স্যার ওই ইটার ব্যাপারে ওই বিসিএস স্টুডেন্টের পে আউটটার ব্যাপারে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি বলেছিলেন যে এখন ওই দীপাবলির আগে একবার ই করতে बता रहे, रुको एक मिनट। হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে কি স্যার সোম अच्छा तो देखो यहाँ पे डायनामिक मेथड डिस्पैच में हम लोग क्या किए, डायनामिक मेथड डिस्पैच क्या होता है, डायनामिक मेथड डिस्पैच में हम लोग सुपर क्लास का रेफरेंस तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं। सुपर क्लास का रेफरेंस मतलब दिस इज सुपर क्लास रेफरेंस AOB1 या AOB, दिस इज रेफरेंस। रेफरेंस और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट का मेमोरी होता है और रेफरेंस का मेमोरी नहीं होता है। मेमोरी कैसे क्रिएट होता है, न्यू देके। तो ये सिंपली क्या है, रेफरेंस। हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये रेफरेंस हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि OB1 इक्वल्स टू न्यू ए। इसका मतलब क्या है, न्यू ए मतलब क्या है, किसका ऑब्जेक्ट, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट किसके पास होगा, रेफरेंस के पास। सो रेफरेंस कैन स्टोर ओन क्लासेस ऑब्जेक्ट एंड सब क्लासेस ऑब्जेक्ट आल्सो। समझ रहे हो, मतलब सुपर जो क्लास है उसका जो रेफरेंस है वो अपना क्लास का ऑब्जेक्ट एंड सब क्लास का ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रख सकता है। अब जिसका ऑब्जेक्ट उसके पास होगा उसी ऑब्जेक्ट की तरह वो काम करेगा, उसी क्लास की तरह वो बिहेव करेगा। दैट मीन्स अभी OB1 के पास किसका ऑब्जेक्ट है, अपना क्लास का। दैट मीन्स अगर OB1 डॉट एरिया करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या किए, मान लो यहाँ पे ऐसा है AOB, ये भी रेफरेंस है। अच्छा सॉरी, अच्छा इसको हटा दो, रेफरेंस है एक ही है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, OB1 डॉट न्यू एरिया। सो OB1 क्या है, OB1 इज द रेफरेंस, सुपर क्लास का रेफरेंस। उसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट डाले, सब क्लास का, ठीक है। तो अभी OB1 किसकी तरह काम करेगा, सब क्लास की तरह काम करेगा। सो OB1 डॉट एरिया जब कॉल करेंगे तो सब क्लास का वैल्यू आएगा। देखो कंट्रोल एस कर दिए, रन करके देखो, ठीक है। पहला 4 देखो, 16 मतलब ऊपर के लिए, नीचे वाला 5 सब क्लास के लिए, सब एरिया इज 25, ठीक है। ठीक है, कौन पूछ रहे थे तुम, आगे वाला कोड, ठीक है, आगे, हाँ हाँ हाँ, समझ गए। बस इसका आगे वाला जो कोड दिए थे वो थोड़ा सा चेंज होगा, वो हम फिर से पेस्ट कर दिए, देख लेना एक बार। বুঝতে পারলি সৌমিতা? হ্যাঁ স্যার। সবই তো বুঝতে পারিস কিন্তু করতে পারিস আর কই। তো আগের প্রোগ্রামটা দিলি তুই চ্যাটে? না স্যার দিইনি, দেব? তো ম্যাম কি জন্য দিয়েছে প্রোগ্রামটা? না স্যার অনেক দেরি হয়ে গেল তো তাই। আচ্ছা
অনয় করেছিস? এটা তো বেশিক্ষণ করা লাগার কথা ছিল না তো। অনয় আছিস? হ্যাঁ স্যার আছে আছে তো স্যার লাঞ্চ program- করতে গেছিল। হ্যাঁ, কে অনয়? তুই অনয় বলছিস নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক বলছি, আচ্ছা, আগে তুই কি লাঞ্চ করতে গেছিল। তো লাঞ্চ করতে গেছিলিস তো প্রোগ্রামটা দিলি না তুই? এতক্ষণ তো সময় লাগার কথা না প্রোগ্রামটা। ও আচ্ছা সত্যি। अच्छा जेटा बुझेलाम बुझते पेरेछि सब सबको समझ में आया। ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा के रिस्पेक्ट में। ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग मैक्सिमम इंटरव्यू केस में 90% ये क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। व्हाट इज ओवरलोडिंग, व्हाट इज ओवरराइडिंग एंड डिफरेंस एंड मेथड डायनेमिक मेथड डिस्पैच। ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट है टोटल। ठीक है, चलो इसके ऊपर बहुत सारा असाइनमेंट था शायद पीसीए 1 या पीसीए 1 में ही शायद था, तो देख लेना तुम लोग। मिथिलेश 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 ঘুমিয়ে পড়েছে স্যার। হ্যাঁ, মোবাইলটা চালিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে গেছে, লাঞ্চ করে এসছে। ঠিক আছে চল, ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিয়েছেন স্বপ্না ম্যাম? ওকে মনে হয় নিয়ে নিয়েছে, দেখে নিচ্ছি তো। তোদের নেক্সট ক্লাস তো মনে হয় দিওয়ালিতে কাটবে। না একটা ক্লাস হবে দিওয়ালির আগে, মানে তোদের বুধ আর বৃহস্পতিবার ক্লাস হয় না? আমাদের স্যার মঙ্গলবারে আছে। ও তাহলে মঙ্গলবারের ক্লাসটা হবে, এই বুধবার এই বৃহস্পতিবারের ক্লাসটা হবে না, এই জাভা ল্যাবটা। আর তারপর কি স্যার অফলাইন হবে? অফলাইন থাম, মমতা এখন বলেছে, এখন তো চিঠি পাঠায়নি, চিঠি পাঠাক। তো ভার্বালি একটা ডিক্লারেশন দিয়েছে, কিন্তু সেটা অফিসিয়ালি ডকুমেন্ট আসবে ইউনিভার্সিটির থ্রু দিয়ে কলেজে, তবে সেটা গ্র্যান্টেড হবে। হুম। তবে মনে হয় স্কুল টুল তো খোলার চলছে সব চিন্তা ভাবনা, তা আশা করি খুলে যেতে পারে। কোথায় গেল? হ্যাঁ ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিয়েছেন? হ্যালো ম্যাম। তিনি এই মুহূর্তে অন্য কলে ব্যস্ত আছেন। অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন বা কিছুক্ষণ পর আবার কল করুন। আপনি জাস্ট ও আচ্ছা থাম, আমি তো নিতে পারবো না। অ্যাটেন্ডেন্স এখানেই থাকে, কোথায় গেল? ডিসেবল মাইক। টার্ন অন টার্ন অন টার্ন অন। হ্যাঁ ম্যাম বলছি যে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিয়েছেন আপনি? অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিন, হ্যাঁ ওদের হয়ে গেছে ক্লাস। হুম হুম হুম। কি দিয়েছিস নাকি সৌমিতা? আচ্ছা কি করেছিস হ্যাঁ দেখি।